The question is count pairs of connectable servers in a weighted tree network. In the question, it will be given with a weighted unrooted tree with n vertices and n minus 1 edges, where edges of I represent A, I, B, I, weight I, where A to B are connected with a weight I, weight edge. And you are also provided with a signal spin. And you need to return that count where each element of the count will be representing the number of server pairs that are connectable to a server I. When we can say that a pair is connectable to a server, if let's say A and B are connectable, if A is less than B, A is not equals to C and B is also not equals to C. It means these three are distinct vertices, as well as the distance from C to A is divisible by signal speed, as well as the distance from C to B is divisible by signal speed. And there must be no edges repeat, like from C to B and C to A. There must not be a single repeated edge. Like they should have all the different edges. Like C to A and C to B should not share any edges. So that's the question. Let me make it more clear. क्वेश्चन में क्या होगा कि लाइक हम लोग के पास एक एजेस हो गए दैट इज कंटेनिंग ए बी सी ए डब्ल्यू कर देते ए बी डब्ल्यू वेयर ए टू बी इज कनेक्टेड विद अ weight of each. Like this is the W is representing the edge weight, and you need to return a count array in which each element, like ये जो I है, that will be representing that how many pairs are connected to this server I, and how we can say that A and B is connected with the server I. If A, B, C are distinct, it means A must be less than B, and A should not be equals to C, as well as B should not be equals to C. And the distance from A to C must be divisible by signal speed, that is given in the question. And B to C must also be divisible by signal speed. And you need to return that number of pair count for each and every I vertex. So how can we do that? The constraint for n is given 10 to the power 3. Then we can for sure do a n square thing, because if we are doing a n square, then time complexity would be lesser than 10 to the power 8. So it would not be a time limit exists. So n square would be acceptable. So n square हम लोग कर सकते हैं. तो n square में क्या करेंगे? If कोई भी vertex है I, यहाँ पे एक और चीज़ है कि लाइक A to C ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे कोई है H2 है, 4 है, 6 है एंड 8. ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते लाइक 2 to 8 एंड 6 to 8, बिकॉज इफ हम लोग 2 से 8 लेंगे एंड 6 से 8 लेंगे तो देयर आर सम शेयर्ड एजेस. तो ये A और लाइक A to C में B to C एज वेल एज A to C कोई भी शेयर्ड एजेस नहीं हो सकते. तो हम लोग एक चीज़ फॉर श्योर है, अगर इस वाले आई के लिए हम चेक करें तो इसके लेफ्ट में राइट में मतलब ये इसमें से एक ले सकते हैं, इसमें से एक, लाइक ऐसा वाला पेयर हम लोगों को फॉर्म करना है. तो जब हम लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो इफ़ एक साइड का है तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते. एज एटलीस्ट 2 साइड के चाहिए. इसमें से एक ले लेंगे और जो दूसरा वाला है उससे एक ले सकते हैं. तो हम लोग के पास कितने पेयर पॉसिबल है? लेट्स से हम लोगों के पास अभी हम लोग इस चाइल्ड में ट्रैवर्स किए और इससे काउंट है C1. लाइक देयर आर C1 एजेस. यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 से लेट्स से यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को सिग्नल स्पीड से 3, और ये 3 डिस्टेंस पे 4 है, उसके फिर 6 डिस्टेंस पे 5 है, फिर यहाँ पे कुछ है. तो यहाँ पे लेट्स से 3 एजेस है जिसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम 2 दैट इज C1. 2 से जितना भी डिस्टेंस है दैट आर डिविजिबल बाई सिग्नल स्पीड. तो वैसे नोड्स के काउंट है C1. फ्रॉम दिस वी गॉट C1. इससे मिला मेरे को C2, इससे मेरे को मिला C3. तो अब अगर हम काउंट करने जाएंगे C1 C2 का, हम क्या करेंगे? C1 इंटू C2, लाइक C1 से एक ले सकते हैं, C2 से एक ले सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? C1 C2. और इसमें से लाइक A लेस देन B वाला चेकिंग करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज लेट्स से अगर 4 6 है तो इसमें से किसी को भी तो हम A बना देंगे, जो स्मॉलेस्ट है उसको A और जो ग्रेटर है उसको B बना देंगे. तो अगर 2 डिफरेंट वर्टेक्स हैं तो उसमें से कोई एक तो छोटा होगा ही फॉर श्योर. तो C1 से एक चूज़ करेंगे और
C2 से एक चूज़ करेंगे तो लाइक इन C1 लाइक C1 से एक चूज़ करेंगे तो C1 C2 C1 इन, तो C1 इंटू C2 का टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएगा। अब मेरे पास जब हम C3 में आएंगे तो आई हैव ऑप्शंस कि हम C1 प्लस C2 लाइक इन दोनों में से किसी से भी एक पेयर उठा सकते हैं, लाइक एक पेयर नहीं, एक वर्टेक्स, और C3 से एक वर्टेक्स उठा सकते हैं इफ हम इस वाले साइड से एक लेना चाहते हैं। तो कितना हो जाएगा, इफ़ वी आर एट C3 तो C1 इंटू C2 से एक उठा लो और C3 से एक उठा लो, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। फिर वापस से अगर मेरे पास और एक वर्टेक्स होता C4 तो क्या कर सकते हैं हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3 से एक उठा लो इंटू C4, ऐसा कर देंगे। तो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव द सर्वर S2। तो ऐसे करके फॉर ईच एंड एवरी वर्टेक्स हम लोग उसके सारे नोड्स में ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक हम लोग के पास टोटल n नोड्स हैं और सारे n नोड्स के लिए हम लोगों को टोटल n में ट्रैवल्स करना है, तो n स्क्वायर ही होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरे को बेसिकली वही करना है, उसके सारे चिल्ड्रन C1 C2 निकालने और ऐसे करके नहीं ये नंबर ऑफ पेयर्स आंसर में ये ऐड कर देना है, फिर आंसर में ये ऐड कर देना है एंड देन रिटर्न द आंसर, और ये काउंट किसी भी वर्टेक्स i के लिए हम लोग कर सकते हैं। So that's it. Let me show the code and it will be more clear. So what I've done in the code is यहाँ पे edges ले लिया और फिर यहाँ पे क्या था कि edges का साइन जो होगा n-1 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इज n, तो edges का साइज +1। अब हम लोगों को एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है जिसमें कि फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज इफ हम लोगों का A to B इज कनेक्टेड एंड दिस इज फॉर स्टोरिंग द वेट। तो अभी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स किए तो वी हैव कनेक्टेड लाइक ए से जो भी उसका चिल्ड्रन है दैट इज एज वेल एज इट्स वे। तो हम लोगों का फिर एलिमेंट ऑफ 1 से भी कर दिए, लाइक हम लोग इफ ए से बी कनेक्टेड है तो बी से भी तो ए कनेक्टेड होगा, तो इसलिए फिर हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना लें। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग फॉर ईच एंड एवरी नोड कैलकुलेट करेंगे, तो एक फाइंड फंक्शन बताएं जिससे कि हम लोग नोड पास करें एडजेसेंसी लिस्ट एंड सिग्नल स्पीड। ये -1 का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग के पास नोड है एडजेसेंसी लिस्ट एंड स्पीड। उसके बाद हम लोग इसके सारे चिल्ड्रन में ट्रैवर्स करें, तो कि ये मेरा जो है ये काउंट फॉर एवरी चिल्ड्रन लाइक C है ये। अब मेरा जो फर्स्ट चिल्ड्रन से काउंट हुआ, अभी मानते हैं कि मेरे को C1 दिया, तो C1 अभी क्या 12, ठीक है। तो 10 मिला तो अभी क्या करेंगे C1 इंटू पहले वाला जो काउंट है तो वो मेरा करंट में स्टोर है, जो प्रीवियस काउंट है अभी तो प्रीवियस काउंट कुछ नहीं है, तो ये तो आंसर में अभी 0 ही आ जाएगा। फिर करंट में अभी क्या हो जाएगा C1। उसके बाद जब C2 आएगा, अभी हम लोगों के पास C2 है फॉर नेक्स्ट चिल्ड्रन, फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए C1 हम लोग करंट में स्टोर कर लिया, C2 के लिए आया तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स क्या बनेंगे, करंट में C1 है, टेप में C2, तो C1 इंटू C2 वापस से अभी करंट में टेम्प ऐड करें तो करंट में अभी C1 प्लस C2 होगा। तो जब मेरे पास C3 आ जाएगा तो नंबर ऑफ पेयर जो C3 के साथ हम फॉर्म कर सकते हैं, तो C1 प्लस C2 से किसी से भी एक वर्टेक्स उठा सकते हैं और C3 से एक उठा लेंगे, तो C1 प्लस C2 इंटू C3, फिर वो आंसर में ऐड कर देना है एंड रिटर्न आंसर। बट ये C1 C2 C3 हम लोग कैसे निकालें, तो वो एक फाइंड टू फंक्शन बनाएं जिसमें कि हम नोड पास करें, दैट इज मेरा ये चिल्ड्रन का नोड है, दैट इज एलिमेंट फर्स्ट, एडजेसेंसी लिस्ट, स्पीड क्या है और ये मेरा वेट है, लाइक जो अभी हम नोड पे है तो नोड से जो मेरा चिल्ड्रन होगा उसका वेट जो है, ये वेट भी तो ऐड करना है, तो वेट या एलिमेंट डॉट सेकेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टोर किए थे एडजेसेंसी लिस्ट में, एज वेल एज हम पेरेंट भी पास करें, दैट नोड ही हम लोग का पेरेंट है फॉर एलिमेंट डॉट फर्स्ट। उसके बाद फिर if the distance like from node to this children the distance is divisible by single speed, तो हम लोग क्या करें आंसर को प्लस प्लस एंड एट द एंड हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर एवरी चिल्ड्रन हम लोग के पास काउंट आ जाएंगे कितने नोड्स हैं जिनके डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड डिविजिबल बाई है, मतलब कितने चिल्ड्रन नोड्स हैं जो कि नोड लाइक कितने चिल्ड्रन नोड्स हैं जो कि नोड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सिग्नल स्पीड से डिविजिबल हो रहा है। तो उसके फिर हम लोग उसके सारे चिल्ड्रन में ट्रैवर्स कर रहे हैं और डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे रहे हैं विद अ वेट, लाइक अभी हम लोग नोड पे खड़े तो नोड से अभी हम लोग जाएंगे चाइल्ड पे, तो ये वाला वेट तो ऐड हो गए, दैट इज एलिमेंट डॉट सेकेंड, तो डिस्टेंस में ऐड कर दी एंड पेरेंट को नोट कर दी, एडजेसेंसी लिस्ट, सिग्नल स्पीड सेम रहेगा एंड हम लोग चाइल्ड को पास कर दी। तो ऐसे हम लोगों को काउंट का कैलकुलेशन हो जाएगा एंड एट द एंड वी रिटर्न द आंसर।
दैट इज़ द काउंट। तो यहाँ से मेरे को C1 मिल जाएगा, C2, C3 फॉर ईच एंड एवरी नोड। उसके बाद फिर बस कैलकुलेट करके रिटर्न कर देना आंसर, एंड यहाँ पे स्टोर करके एट द एंड just return your answer. That's the final one. So that's it. Thank you for watching.